Good morning, students. Today we will start our sixth chapter, anatomy of flowering plants. Okay. Uh, Multicellular plants are made up of group of cells. Okay, having similar origin, structure and functions like multicellular animals. जैसे कि मल्टीसेलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स से मिलकर एनिमल का जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी से बना होता है, वैसी जो मल्टीसेलर प्लांट्स होते हैं, जो एडवांस यानी डेवलप्ड प्लांट होते हैं, उनका बॉडी भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन को करने के लिए सेल्स का एक ग्रुप उसमें पाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड टिश्यूज. With the exception of some plants, the internal structure of most plant is complex and cell of different types form the plant body. Okay, so a group of cell having a common origin and cooperating with one another to perform a similar function or a set of similar functions is described as a tissue. Okay. Plasmodesmata often occur amongst cell for proper coordination. Actually, development of intercellular coordination through plasmodesmata is an important event in biological evolution. तो जो इवोल्यूशन है उसमें प्लांट्स में जो सेल होते हैं या सेल्स का जो ग्रुप होते हैं वो प्लाज्माडेस्मेटा के रूप में अरेंज्ड होते हैं, और ये जो है इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल द टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं होता है, जो लाइफ का फंक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होता है. इसीलिए जो टिश्यूज होते हैं वो भी टू टाइप्स के ही होते हैं. एक तो सिंपल फंक्शन को करने के लिए, लाइक प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल टाइप के टिश्यूज होते हैं. एंड जो कॉम्प्लेक्स वर्क है, लाइक वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे जगह में पहुंचाना, एंड फूड प्रिपरेशन और उस बने हुए प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट एरिया में पहुंचाना, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है. तो इनके लिए जो टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. A simple tissue is made up of similar cell which carry out the same function. A complex tissue is made up of two or more than two types of cells which are arranged from the beginning and perform a similar function, like xylem and phloem. Xylem और phloem जो है वो different type के tissues का एक group होता है जो कि complex function को करने के लिए arranged होते हैं, है ना. And the branch of biology dealing with the study of tissues, their origin, development, arrangement, structure and function is called histology. Okay, जिस ब्रांच में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम टिश्यूज़ का स्टडी करते हैं उन्हें उस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा जाता है. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मार्सेलो Malpighi, whereas the term histology was used by Mayer 1819. The term tissues was used for first time by Bichet 1971 to 1802 में इसको इस वर्ड को यूज़ किया गया था, टिश्यूज वर्ड को. ठीक है. So when we learn about types of tissues, based on the capacity of divide, the plant tissues have been classified into two fundamental types, meristematic tissues and permanent tissues. And we will again divide meristematic tissues upon based on origin, based on position and based on function. The based on origin they are three types, promeristem, primary and secondary, and based on position apical, intercalary and lateral, and based on function protoderm and protocambium and ground tissues. Okay, same as it is, permanent tissues are also divided into three types. Simple, it is also divided into three types, parenchymatous, collenchymatous and sclerenchymatous.
एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स वर्क को करते हैं, एंड स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ में आते हैं ग्रैंडुलर एंड लैटिसिफेरस। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, है ना, वो जैसे कि हेयर यानी स्पाइंस वगैरह पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, एंड स्टिनिंग हेयर्स एंड नेक्टेरियस, ये सब जो है इसमें आएगा। एंड इंटरनल ग्लैंड में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, रेजिन ग्लैंड्स एंड हाइडेथोट्स वगैरह जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। एंड स्पेशल टिश्यूज़ के लेटिसिफेरस में आते हैं लैटेक्स। आप लोगों ने लैटेक्स का नाम सुना होगा, रबर जिससे बनाया जाता है, तो जिससे ये सीक्रेट होता है ना, तो वो वेसल्स एंड सेल्स इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। ओके, तो हम थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लें। द प्लांट टिश्यू whose cell have the capacity of division and redivision due to which growth in plant takes place is called meristematic tissue. Cell of this tissue is called meristematic cell, and the region of plant axis, root and shoot having meristematic tissues is known as meristem. प्लांट्स का जो कुछ एरिया है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है, लाइक जो इसका स्टेम का भाग है एंड रूट का जो रूट कैप के ऊपर वाला भाग है, ग्रोथ रीजन है वहाँ पर। तो यहाँ पर सेल क्या है, हमेशा जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, हमेशा डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन होते रहता है। तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, meristematic cells are spherical, oval and polygonal in shape. There are usually isometric, ये सभी लगभग एक समान आकार के होते हैं, ठीक है, और ये स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल होते हैं। एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज लैकिंग, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता। एंड सेल आर थीन वॉल्ड, इसका जो सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है वो थीन होता है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड द प्रोटोप्लाज्म इज डेंस एंड मेटाबॉलिकली मच एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है तो इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। न्यूक्लियस इनसाइड सेल्स आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट, यहाँ पर अभी न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म आर इधर एब्सेंट आर वेरी स्मॉल इन साइज, वैक्यूल्स अभी बड़ा नहीं हुआ रहता है क्योंकि इनमें डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है, तो वैक्यूल्स को बड़ा होने का टाइम नहीं मिलता है। हावेवर कैम्बियम सेल कंटेन्स लार्ज वैक्यूल्स, कैम्बियम सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल आर लैकिंग इन मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पर चूँकि डिवीजन चल रहा है इसलिए इसमें रिजर्व फूड नहीं होगा। एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी हाई एंड देयरफॉर synthetic activity inside cells is very much high. Okay, and these cells contains plastids in the form of protoplastids, and meristematic cells are always living. Okay, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इनमें सभी एक्टिविटीज़ जो है वो फास्ट होगा और ये लिविंग ही होंगे, लिविंग सेल्स में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाएंगे। Okay, generally we have learned only 3 types of meristematic tissues based on position: apical, intercalary and lateral. What is intercalary? What is apical meristematic tissues? These meristems are found एट द एपिकल ऑफ स्टेम्स आर रूट, जैसे कि मैंने बताया कि रूट एंड स्टेम के एपिकल भाग में, टिप के भाग में ये पाया जाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ, इनके डिवीज़न होने के कारण ये कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है और लेंथ में बढ़ोतरी होती है। एंड दे फॉर्म ग्रोइंग पॉइंट एट द एपिक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। ओके, ये जो है वो रूट एंड स्टेम के एपिक्स में पाया जाता है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसको बोलेंगे हम?
These meristem are present in between permanent tissues. जब ये टिश्यूज डिवाइड हो जाता है तो सामने का एपेक्स वाला भाग का जो टिश्यू है डिवाइड होते जाता है और ये लेंथ को बढ़ाता है, तो जो पीछे के टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और इनमें डिवीजन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन जो 1 वर्ष से ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा वाले प्लांट होते हैं उनमें इन परमानेंट टिश्यूज़ में बाद में कुछ जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनमें बाद में फिर से डिवीजन होता है। तो दीज मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज़. These are the portion of apical meristem which are separated from the apex during the growth of axis and formation of permanent tissues. They may be present either at the base of internode like grass and wheat, or at the base of leaf as in pinus, or at the base of node. ठीक है, ये या तो इंटरनोड के बेस पे जो हमने बताया था स्टेम में, ये जो जगह होता है जहाँ से लीफ लगा है नोड और या स्टेम निकला है या लीफ लगा है, और बीच का जो जगह होता है इंटरनोड होता है ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड के बेस में होते हैं, या ग्रास वगैरह वीट वगैरह है उनके लीफ के बेस में होते हैं, या पाइनस जैसे है ना, एंड या तो फिर ये नोड के बेस में होते हैं जैसे लाइक मिंट में जहाँ पर से रूट निकलता है और प्लांट का ग्रोथ होता है. द एक्टिविटी ऑफ दीज मेरिस्टेम आल्सो एड टू द लेंथ ऑफ द प्लांट और इट्स ऑर्गन. दे ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड आर शॉर्ट लिव्ड. एंड थर्ड वन इज lateral meristem tissues. These meristem are found on lateral margins of stem and branches. स्टेम और ब्रांचेस के लेटरल मार्जिन में ये होता है लाइक कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. अभी हम जब स्टेम का अंदर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तब देखेंगे कि कैम्बियम एंड ये बीच का जो भाग है कैम्बियम एंड ये जो भाग है वो कॉर्क कैम्बियम कहलाता है. तो यहाँ पर होते हैं और ये जो है it is composed of such initial which divide mainly in one plane particularly and increase the diameter of girth of stem and branches. ये जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय डिवाइड होते हैं और स्टेम या ब्रांचेस के विड्थ को, मोटाई को बढ़ाने के लिए, ग्रीथ को है ना, ग्रीथ या मोटाई को बढ़ाने के लिए इनमें डिवीज़न होता है. ये फिर से डिवाइड होते हैं, इसलिए इसको मेरिस्टेम टिश्यूज कहा जाता है. ओके, एंड देन वी नो अबाउट परमानेंट टिश्यूज. व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड अटेन अ डेफिनिट शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. ओके, जब प्लांट का जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ है इनमें डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो गई और इनका जो शेप है और जो साइज है वो डेफिनिट हो गया है न, तो एंड दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. द सेल ऑफ सम परमानेंट टिश्यूज आर इधर लिविंग और डेड, थिन और थिक वॉल्ड. तो परमानेंट टिश्यूज जो है वो लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है. उसका वॉल जो है वो सेल्यूलोज का भी बना हो सकता है, पेक्टिन एंड लेनिन का भी बना हो सकता है, वो थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है. सो परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स. हमने पहले आपको बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यूज. What is simple permanent tissue? Permanent tissues are those cells which fail to divide on maturity. The simple permanent tissues are composed of simple type of cells in shape, size, function and form a homogeneously. These are of 3 types: parenchymatous, collenchymatous and scalenchymatous. Parenchymatous tissues
parenchymatous simple permanent tissues. Okay, so parenchymatous tissues consist of a group of thin walled isodiametric cells. The cell may be oval, circular or polygonal, like this. Okay. विथ इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस हमको इनके बीच में दिखाई दे रहा है. द सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, सेल शेप एंड न्यूक्लियस. इसमें अगर ये डेड नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म में भी होगा, वैक्यूल्स जो है वो काफ़ी बड़ा इसमें होगा, न्यूक्लियस जो है वो छोटा हो जाएगा, है ना. एंड द सेल वॉल इज़ थीन एंड मेड ऑफ सेल्यूलोज. इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, थीन होता है, और अभी ये केवल सेलुलोज से ही बना हुआ है. एंड पैरेन्काइमा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. जितने भी प्लांट के बॉडी का जो ग्रीन भाग हम देख रहे हैं जहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा है और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हमको दिखाई देंगे. इट इज़ फाउंड इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ, मेसोफिल ऑफ लीव्स and is also present in xylem and phloem. Okay, and when we know about collenchymatous tissue, collenchymatous cells are living and their cell wall are unevenly thickened. अब यहाँ पर क्या होगा, इनका जो सेल वॉल होता है ना, वो काफ़ी थिन हो जाता है इस टाइप का. ये जो है वो स्टेम वगैरह में पाए जाएंगे जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत रहती है. ठीक है, लाइक दिस. ओके, द सेल वॉल बिकम्स थिकेंड एंड एट द adjoining region of two or more cells or at the concerned due to deposition of more amount of cellulose and pectin. अभी क्या हो गया है, इसका जो सेल वॉल है वो उसमें सेल्यूलोज जो है वो पेक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसका जो सेल वॉल है वो ठीक हो जाता है और काफ़ी हार्ड टाइप का हो जाता है. हेंस द सेल वॉल बिकम्स रिजिड, है ना, ये कठोर हो जाता है. एंड दिस सेल में कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड दस बिकम photosynthesis in function. And collenchyma is usually found in 3-4 layered hypodermis of herbaceous dicotyledon stems. जो कड़ा टाइप का और हरा स्टेम होता है डाइकोटिलिडन्स में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं. दे आर absent in monocot stem. ये जो है वो मोनोकॉट स्टेम्स में नहीं पाए जाते हैं. ओके, and okay, its structure like this. Okay, and third one is the sclerenchymatous simple permanent tissues. It is a simple supportive tissues of highly thick walled cell with little or no protoplasm. जब हम देखते हैं कि पेड़ की जो डाली है सूखी सूखी सी दिखाई देती है हमको, जहाँ पर ड्राई एरिया हो जाता है, ज़्यादातर ये स्टेम में होता है ना. तो यहाँ पर अब ये क्या हुआ, पहले ये पैरेन्काइमेटस था, फिर ये कोलेनकाइमेटस में चेंज हो गया, अब ये जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक दिस. अब क्या होता है, इसका जो वॉल है वो काफ़ी थिक हो जाता है एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है वो सूख जाता है. एंड द टिश्यूज डिफर फ्रॉम प्रीवियस टिश्यूज इन पोजिशिंग थिक एंडेड सेकेंडरी वॉल्स विच आर जनरली लिग्निफाइड. अब यहाँ पर जो सेल्यूलोज था वो पहले पेक्टिन में फिर लिग्निन में कन्वर्ट हो गया, इसका जो सेल वॉल है उसका, जिसके कारण सेल वॉल कंटेन्स डिपोजिशन ऑफ लिग्निन लिग्निफाइड. दे आर ऑफ वेरियस शेप्ड एंड साइज व्हेन मैच्योर. जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के शेप एंड साइज में कन्वर्ट होते हैं. एंड दे आर हार्ड
The thickening of cell wall in sclerenchymatous cell is not uniform. A certain place on cell wall there is no deposition of lignin and other materials. Such places are known as pits, and pits on cell wall may be of two types, simple pits and bordered pits. कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये लिग्निन में कन्वर्ट हो गया है, तो कहीं कहीं पर लिग्निन नहीं जम पाता, जैसे लाइक दिस है ना। तो यहाँ पर एक जगह हम ऐसे छोड़ देते हैं बीच बीच में, और इसके बाकी चारों तरफ लिग्निन जमेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं इसका स्टोरेज हो पाएगा वॉल में लिग्निन का। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पतला सा थिन जो सेल मेम्ब्रेन का होता है वही होता है, यहाँ पे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सेल ड्राई हो गया है, प्रोटोप्लाज्मा ड्राई हो गया है, इसका जो वॉल है काफ़ी थिक हो गया है, लिग्निन का जमा हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर लिग्निन नहीं स्टोर हो पाया, तो ये एरिया क्या कहलाता है, पिट कहलाता है। तो ये पिट या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर बॉर्डर्ड पिट इसमें हो सकते हैं। तो आई थिंक कि आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम फ्लोएम एंड स्पेशल टिश्यूज ग्रैनुलर एंड लेटिसिफेरस के बारे में स्टडी करेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।